Good afternoon, students. First of all, this video is there to explain you how to make a project, the CBSE project on consumer awareness. The project that you are viewing right now is an online project that was created by students when there was COVID-19. But very strongly and very clearly, I am telling you, none of you is allowed to make a digital or a computerized project. You have to make a handwritten project adding beautiful pictures and relevant pictures. So first thing that you all need to do is that you need to have A4 size sheets for making this project. Take sheets that are light in color and do not take multicolor sheets. Take a combination of one or two colored sheets only. You can take plain sheets, you can take one side plain, one side ruled sheets as per your own convenience. Secondly, when you are making the project, please do not make a very colorful project. It's a scholastic project and it has to be made in that manner only. It's a social science project, it's not an artwork. So please do not use glitter pens. If you want to use colored pens, then also do not take too many colors. You can restrict yourself to maximum 3 to 4 colors, not more than that. Try to write headings in a beautiful font, followed by writing in a black pen, or preferably a black pen you can use for writing the project, or any other color of your choice. Avoid using red color because that is generally used for checking. So as given, the instructions have already been given to you in the holidays homework, yet I am explaining this to you again. The project has to be submitted in a file, so the first page of the project has to be a file cover. So just write, you can write CBSE class 10 project, consumer awareness, or if you are putting into a stick file, or if that is a kind of file which does not need any cover, then it is absolutely okay. So we'll start with the first page as given in the project guidelines, that the first page that you will create is a cover page. So the page that is there in front of you right now is a cover page. It will have a heading, that is consumer awareness project. It will have relevant pictures related to that topic, and as written, the full name, class and section, roll number, school name and session. Your session is 2022-2023. The second thing that you have to make is the index. So for index, the page needs to be numbered, and there are 3 columns that you need to make: serial number, topic and page number. Taking each and everything, see, one topic will be taken up, every topic will be taken up on separate pages. Okay, so you don't have to start the other topic just below the first one. ऐसा नहीं करेंगे आप. तो अगर हमें पहला टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट होएगी, मान लीजिए 1.5 पेज पे आई, तो ये नहीं है कि आप उसके नीचे से फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेटेशन स्टार्ट कर देंगे, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे. इंडेक्स के बाद सभी बच्चों को बोला गया है कि आपने एक एक्नॉलेजमेंट बनानी, एक स्पेसिमन एक्नॉलेजमेंट आपको दी भी गई है, या आपको मैं कुछ और सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ क्लासरूम में अपलोड करूँगी, आप वहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं. सो एक एक्नॉलेजमेंट आपने लिखनी है. एक्नॉलेजमेंट के नीचे आपका अगेन फुल नेम, क्लास एंड सेक्शन आएगा. फिर उसके बाद पहला टॉपिक दिया गया है फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन दी गई है आपको, जिसमें बोला गया है हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया. आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर अवेयरनेस का है. वो चैप्टर थरली रीड करेंगे, आप उससे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, सो दैट आपको एक नॉलेज मिले. ठीक है, प्रोजेक्ट मिला है किसी चैप्टर पे बनाने के लिए, क्योंकि उसे क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स टू नो. सो हिस्ट्री लिखेंगे. अब जैसे ये जो प्रोजेक्ट आप इस वक्त देख रहे हैं वीडियो के अंदर, देखिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रेजेंटेशन करने का. जनरली बच्चे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एक साइड पर लिखते हैं, सामने वाली प्लेन साइड पर पिक्चर्स लगाते हैं. पर प्रोजेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है लाइक अ टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होता कि एक साइड पर लिखा है और सामने पिक्चर्स हैं. टेक्स्ट होता है, इनसेट बीच में कोई पिक्चर आ जाती है, फिर थोड़ा टेक्स्ट लिखा होता है. दैट इज़ द आइडियल वे ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट. तो आप भी अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं. ये थोड़ा लिखा, जैसे साइड में एक पिक्चर लगा दी, इस तरीके से आप कवर करने की कोशिश करिएगा. अगर आप नहीं हैं कंफर्टेबल इसमें, तो आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही बनाना है. आप वन साइड प्लेन, वन साइड रूल्ड इमेजेस यूज़ कर सकते हैं. दूसरी बात, जब भी कोई इमेज आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, कलर, ब्लैक एंड वाइट, मिक्स इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं. जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे बेटा, जैसे बुक के नीचे हमेशा लिखा होता है कि व्हाट इज़ दैट इमेज रिप्रेजेंटिंग, आपकी इमेजेस में भी वो लिखा होना
चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिया, देखिए एक एक पेज पर एक टॉपिक लेना है। फिर नेक्स्ट पेज पे फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लेंगे। देन कंज्यूमर राइट्स, एक एक कंज्यूमर राइट को एक्सप्लेन करेंगे। तो डिजिटल प्रोजेक्ट है, आपने हैंड रिटन बनाना है, हर कंज्यूमर राइट से रिलेटेड एक फ़ोटोग्राफ आपने ज़रूर लगानी है। फिर उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, उससे रिलेटेड एक कोलाज बनाइए। अगर आप वन साइड प्लेन वन साइड रूल यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड पर सारी कंज्यूमर ड्यूटीज़ लिखिए, उसके सामने वाली साइड पर मल्टीपल पिक्चर्स लगाइए, खूब अच्छा सा। बिकॉज़ ये CBSE का प्रोजेक्ट है, इसके सैम्पल CBSE जाते हैं, सो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, घर में गाइडेंस ले लीजिए किसी की, लेकिन बनाइएगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और सब अपनी राइटिंग में खुद लिखेंगे, कोई बाहर से नहीं बनवाएगा इस प्रोजेक्ट को। फिर आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स, आपको दिए गए हैं ISI, एग मार्क, FPO के अलावा आपको FSSAI भी मिलेगा। FPO ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, FSSAI यूज़ होता है। तो आप जैसे उसमें लिखा भी है आपके प्रोजेक्ट में कि सैम्पल्स लीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के होम से। जैसे आप बॉटल्स चेक करेंगे किसकी, शैम्पू की देखिए, केचप, बटर, जैम, सबके घर में आजकल ग्रीन टी पीने का बहुत रिवाज है। आप जो मसाले के पैकेट हो गए या आपका ज़ीरा हो गया, अजवाइन हो गई, इस तरह के जो आप पैकेट्स खरीदते हैं उस पे आपको, बटर का पैकेट हो गया, इन सब पे आपको कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ तो इन्होंने देखिए फ़ोटोज़ घर की क्लिक करके ऐसे डालें, बट आप भी अपने सैम्पल्स, ठीक है, 2-4 शीट्स पे अलग अलग सैम्पल्स बहुत नीटली उन्हें लगा सकते हैं। रेड चिली पाउडर का लगा लिया, जैसे इन्होंने देखिए किसी मॉइस्चराइज़र से यूज़ किया है, ये ग्रीन टी का सैशे है, जो भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स दिख रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स क्या होते हैं? बेसिकली ये किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, तो ये क्वालिटी को अप्रूव करते हैं ये वाले जो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स, एक नया टॉपिक है, वो आपने यूज़ करना है। देन कोपरा क्या होता है वो उसी के साथ आ जाएगा। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इकोनॉमिक्स की बुक में, आप वहाँ से बिल्कुल वैसा बना सकते हैं पूरा उस तरीके से। देन अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन जागो ग्राहक जागो सपोर्टेड बाय वन एडवर्टाइजमेंट, जो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। जागो ग्राहक जागो की n नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, n नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर में भी आती रही हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये फ़ोटोग्राफ सबकी जो ये एडवर्टीज़मेंट है ये सबकी कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेंगे कोई भी बच्चा। ठीक है बेटे। फिर जैसा प्रोजेक्ट में बताया गया है कि जब आपका सब्जेक्ट मैटर पूरा ख़त्म हो जाए फिर आप समरी कंक्लूजन लेंगे, तो वट दैट इज़ वन द सेम थिंग, या तो समरी हेडिंग दीजिएगा या कंक्लूजन दे दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में, अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ये सर्वे दिया हुआ है, हमने इस साल आपको सर्वे नहीं दिया है तो आपने ये नहीं लेना है। ठीक है, आपने समरी कंक्लूजन के बाद ये वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी क्या होती है? वो बुक्स, वेबसाइट्स जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको हम बिब्लियोग्राफी के अंदर लिस्ट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। एंड फाइनली प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन परफॉर्मा आपको दिया गया है, इसका प्लीज़ प्रिंट आउट निकालिएगा। आपको इस साल जो हॉलीडेज होमवर्क दिया है उसमें दिया है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन परफॉर्मा, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालना है और उसको अपनी A4 साइज शीट के ऊपर पेस्ट करके लेकर आना है। वो लास्ट होना चाहिए, वो CBSE का परफॉर्मा है। अगर बाहर से कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो उसी पे ही आपके साइन करेंगे। इवन आई विल गिव यू मार्क्स ऑन दैट परफॉर्मा ओनली। क्लियरली बताया गया है आपको परफॉर्मा के अंदर दैट 2 मार्क्स का इसमें से वाइवा होगा। सो व्हेन आई विल बी चेकिंग दीज प्रोजेक्ट्स आई वुड बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट ओनली। तो अपना प्रोजेक्ट थॉरली पढ़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे कोपरा क्या होता है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स बताइए, कोई मुझे कंज्यूमर राइट्स के नाम बताइए, दो तीन ड्यूटीज़ बताइए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता सकें। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस आई विल आस्क यू व्हेन आई विल बी असेसिंग योर these projects. So all the best, and still if you have any query you can WhatsApp to me personally. And secondly, for the question answers just wait till evening or tomorrow morning, I'll give you information on that also. Happy holidays.